Now the depression in freezing point, so which is also called as a cryoscopy. So now first of all we will discuss about what is freezing point. So freezing point में क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड जो है वो सेम होता है। तो इसमें इस टेम्परेचर पे क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। तो इसको ग्राफ से समझते हैं। अब ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है वेपर प्रेशर और अगेंस्ट द टेम्परेचर। This one ABC is of solvent and ED is of the solution, and the non-volatile solute is added to the solvent, so we get the solution. So in this, from this graph it is seen that when on cooling of a liquid solvent, so the vapor pressure decreases along this AB, that is, as the temperature decreases the vapor pressure is also decreases. So here a vapor pressure is this, so here vapor pressure is this. Okay, vapor pressure we see the A to B curve. तो एट दिस बी में क्या होगा, सॉलिड जो है वो स्टार्ट अपेयर होना शुरू हो जाएगा, सॉलिड हमें आपको दिखाई देगा। एट बी द सॉलिड ऑफ द लिक्विड starts appearing. तो दूसरा बी में क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड जो है वो सेम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो और ये टेम्परेचर इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द इस प्योर सॉल्वेंट, दैट इज 3 डिग्री F। अब इसमें हम देखते हैं द कर्व जो है ED ये इससे नीचे है, तो इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। क्या है, वेपर प्रेशर is less than that of solvent। और now जब इसको फर्दर कूल करते हैं
तो बी से हमें सी मिल जाता है कर्व। तो इसमें क्या है, टोटली सॉलिड रहता है। इसमें सी पॉइंट पे क्या है, टोटली फ्रीज हो जाता है सॉल्वेंट। तो बी सी कर्व शोज द लिक्विड इज फुली सॉलिड। तो ई में क्या है, वो सॉलिड स्टार्ट्स अपेयरिंग। So E will become the freezing point of the solution. Is TF. Now the difference between ये T डिग्री F है और ये क्या है, TF है। So delta TF, the change in the temperature या freezing point, freezing point of your solvent minus freezing point of the solution is the depression in the freezing point. Also delta TF, the depression in freezing point, is directly proportional to the molality, and Kf here is the molar depression constant, which is also called as the cryoscopic constant. So m is the molality of the solution. So this molar depression constant is the depression in the freezing point if the when the molality is unity. तो इसकी Kf यूनिट क्या होती है, केल्विन kg पर मोल। Kf है अपॉन मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट होता है। टेम्परेचर जो है ये केल्विन में है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। नाउ अब हम इसको देखेंगे कि ये कैसे डिराइव हुआ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलालिटी। अब हमें मोलालिटी क्या मालूम है, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ क्या कहता है, ग्रेटर इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। More is the depression in the freezing point. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द change in the pressure of a solution. So what change in the pressure of the solution is proportional to the mole fraction of the solute. Mole fraction is equal to number of moles of solute upon number of moles of the solvent plus number of moles of the solute. But for dilute solution, this N2 is very less, so it is neglected. So here we can remove this
So here the number of moles of the solvent. So number of moles of the solvent, moles is equal to क्या होता है, mass upon molar mass. तो ये हो जाएगा W1 upon M1. So this will become the N2 upon W1 upon M1. तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा TF is directly proportional to the mole fraction. So this mole fraction is the N2 upon N1, or you can write as is equal to proportionality constant K or into N2 upon N1. So this N2 upon N1 ये हो जाएगा N2 upon W1 upon M1. So this will become A M1 N2 upon W1. So if W1 is the 1 kg, so this will number of moles of solute per kg of the solvent is equal to molality. So it is the molality. And also this Km1 is will become the, we can write as another constant Kf into molality. So Kf is the molar depression constant. So we have derived this formula. तो ये कुछ सॉल्वेंट्स के हम जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट देखते हैं. तो ये वाटर का क्या होता है 1.86, इथेनॉल का क्या है 1.99, कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या है 31.8. तो इसमें हमने देखा क्या है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट किसका ज़्यादा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का ज़्यादा है. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं. द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. तो दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, इससे हमें KF निकालेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट. तो KF इज इक्वल टू क्या होता है RT स्क्वायर अपॉन 1000 LF. So LF is the latent heat of fusion per gram of the solvent. Is equal to किसके बराबर होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट. अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे. तो ये नीचे रह जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा. तो ये जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब इसमें T0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है. M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये दिस M1. एंड डेल्टा H फ्यूजन का क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट. पर मोल है, और जिसको जब हम M1 से डिवाइड कर देते हैं तो पर ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट हो जाता है. तो ये पर मोल ऑफ द सॉल्वेंट है. R क्या है, इज अ गैस कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और डेल्टा फ्यूजन जो है ये जूल्स में होगा, तो ये भी जो है जूल्स में होगा. तो हम ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होता है उससे हम निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट. अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट है ये, इसको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट से कैसे निकाल सकते हैं ये हमें देखते हैं इसमें. और ये हमें फार्मूला मालूम है, इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी. अब मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर
kg ऑफ द सॉल्वेंट, तो पर kg को हम 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं। अब ये W1 जो है वो ग्राम्स में होगा, क्योंकि इसको हमने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये kg में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो है मोलालिटी की जगह पे हम ये इसको तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ऑन W1 ग्राम, तो डेल्टा TF इक्वल टू दिस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो इसको हम इधर ले लेंगे, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू W1, दिस इज इन ग्राम्स। तो ये ऐसे हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का एप्लीकेशन फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। जैसे कार में यूज़ होता है, तो कार का जो कूलेंट होता है उसमें क्या है, वाटर प्लस इथिलीन ग्लाइकॉल का मिक्सचर होता है। तो उससे क्या, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री, वो और नीचे की तरफ चला जाता है इथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से। तो ये जो है कोल्ड क्लाइमेट में फ्रीज नहीं होता। तो दिस विल डू नॉट फ्रीज इन कोल्ड वेदर। अब जैसे और दूसरा है कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, जहाँ पे बर्फ़ रोड्स में रहती है उसके ऊपर ये छिड़काव किया जाता है इसका। तो इसलिए किया जाता है जिससे कि आइस मेल्ट हो जाए। स्कैटर्ड ऑन द रोड्स। अब ये इसमें क्या होता है, वाटर प्लस NaCl का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो -20 तक पहुंच जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है। जब -20 डिग्री टेम्परेचर होगा तभी ये जमेगी। और वाटर प्लस कैल्शियम क्लोराइड का क्या होता है, वाटर प्लस ये -55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो अगर टेम्परेचर एनवायरनमेंट का इससे ज़्यादा है, आइस मेल्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो ये क्या है, ग्राफ ऑफ मोलैलिटी विद एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से और इधर मोलैलिटी जो है हमने ग्राफ को प्लॉट किया है। तो इसमें हम देखते हैं हमें ये स्लोप मिल रहा है। तो दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इस पे डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पे। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा TB, so is directly proportional to the molality of the solution. तो दिस डेल्टा TB को हम ऐसे लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा TB। तो दैट मीन्स TB इज इक्वल टू T डिग्री B प्लस KB इंटू मोलैलिटी। तो ये हमें इससे फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ऐसे जब हम फ्रीजिंग पॉइंट को जो है अगेंस्ट द मोलैलिटी अगर हम ग्राफ करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या ये
जो है फ्रीजिंग पॉइंट जो है गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन मोलैलिटी। सो ये जो है डाउन स्लोप मिल रहा है हमारे को। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे, decreases linearly with molality। तो इसमें भी हम देखते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होता है, टी एफ माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो वैल्यू ऑफ टी एफ यहाँ पे हम रखते हैं इसको, तो टी डिग्री एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। तो टी डिग्री एफ माइनस के एफ इंटू मोलैलिटी इज इक्वल टू टी एफ। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू दिस। तो ये स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट एट हायर टेम्परेचर है, फिर ये जो है गोज ऑन रिड्यूसिंग, तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जा रहा है इसमें एज द मोलैलिटी इंक्रीजेज, सो इट्स इज अ नेगेटिव स्लोप। So here it is a positive slope,